See, what we have done is we have done the properties of normal distribution. We saw that normal distribution is a continuous distribution. Okay. And then we saw that its graph is a bell-shaped graph, right? Then we did a property and we proved this article that minus infinity to infinity fx dx is 1, where fx is the PDF of normal distribution. Okay. After that, what we did, after that, we did a special type of standard normal distribution. And what is that standard normal distribution? Standard normal distribution is a special type of distribution in which the mean is 0 and the variance is 1. Okay? It is a standard normal distribution in which mean is 0 and the variance is 1. A special type of normal distribution. And what is the relationship between the standard normal variate and normal variate? If z is a standard normal variate and x is a normal variate, then z is equal to x minus mu by sigma. Okay? After that, we did 3 articles. One was that integral minus infinity to infinity fx dx is 1. We proved it. Then we proved that mean of normal distribution is mu. We proved it. Okay? Then the next article was this one, that variance of normal distribution, it is sigma square. We have done these 3 articles yesterday. Okay? I suppose these are clear to you, right? Any doubts in it? Yes. Any doubts in it? No, sir. Okay. No, sir. Okay. Then we started discussing the tables. The very first table that we discussed was regarding this. This was the first case. Okay. Probability of 0 less than z less than or equal to 1 in the same thing, less than 0.36. It is a continuous variable, so less than or equal to will give us the same result. Okay. In such a kind of case, okay, we have drawn the graph. In each case, you have to draw the graph, right? And this point is z is equal to 0, the mean, right? Then, if this point is 0.36, z equal to 0.36. ठीक है, आप टेबल बहुत अच्छे से बेटा सीख लीजिए. देखना, टेबल देखना बहुत जरूरी है कि आपने कैसे टेबल देखना है. ठीक है, तो ये जो एरिया है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. एंड हाउ डू वी सी इट, हाउ डू वी चेक इट? वी चेक इट फ्रॉम द टेबल्स. ठीक है, टेबल से कैसे देखना बेटा? ये टेबल था, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये टेबल है. ठीक है, इसमें हमारे पास 2 चीजें हैं. एक तो ये वर्टिकल कॉलम है, इसमें आप फर्स्ट डेसिमल देखते हो. इस वर्टिकल कॉलम में पहला डेसिमल हमारा क्या है? 0.36 है ना नंबर, तो 0.3. ठीक है, और दूसरे में आपने क्या करना है बेटे? दूसरे में आपने दूसरी चीज हमारे पास क्या है, वो है ये हॉरिजॉन्टल रो. और इसमें आपने देखना सेकंड डेसिमल, दैट इज 0.06, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी 0.1406. ठीक है, ये चीज, इतनी चीज हम कल डिस्कस कर चुके थे. तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.1406. ठीक है, आई सपोज इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस, यस सर. यस सर. ठीक है, हर चीज को आपने 0 के साथ रिलेट करना है. क्यों? क्योंकि जो हमारा टेबल है, वो कोई भी नंबर आप उठा लो, वो 0 से लेकर उस नंबर तक का एरिया देता है. ठीक हो गया? और पॉजिटिव साइड का, ये बात याद रखना, पॉजिटिव साइड का. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग. देखो, एक सेकंड केस अब लेते हैं यहाँ पे. लेट अस टेक द सेकंड केस. लेट दिस सेकंड केस बी प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.36 लेस देन z लेस देन 0. अब इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? यस, हाउ टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू? ये हमारा z इक्वल टू 0 पॉइंट है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं ना कहीं 0.36 -0.36 लाई करेगा. z इक्वल टू -0.36. ठीक हो गया? ये कहीं यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है, और ये एरिया हम लोग निकालना चाहते हैं. कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो, आपके पास जो टेबल है, टेबल में सिर्फ पॉजिटिव साइड की वैल्यूज है, मतलब z इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड की वैल्यूज है. तो यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे. क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे, व्हाट विल दैट बी? सिंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
distribution x-axis, sorry, x equal to mu line is symmetric about x equal to mu line, x equal to mean, I am writing it as mean line. ठीक है सर 1 माइनस 0.36 होगा. नहीं बेटा नहीं, मैं बताता हूँ क्या है ये. ओहो चलो ठीक है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू मीन लाइन. ठीक है, देयरफॉर दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू व्हाट. आप ये लगा लो कि ये z इक्वल टू म्यू लाइन जो है वो जो z इक्वल टू 0 लाइन है वो हमारी क्या है, वो हमारी मिरर है. ठीक है, तो जो ये ग्रीन शेडेड एरिया दिस विल बी द सेम एज दिस रेड शेडेड एरिया, isn't it? If this is z equal to 0.36. Got it? Yes. Have you understood this point? Yes, students. Yes. Yes, students. Is Yes, it sir. okay? ठीक है. So this comes out to be, this is equal to, this comes out to be probability of 0 less than z less than probability of 0 less than z less than 0.36. ठीक है, तो ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है. आप चाहे इसे x इक्वल टू म्यू लाइन लगा लीजिए, पर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो z इक्वल टू 0 लाइन लिखना बेटर है. ठीक है, सो वी आर गेटिंग द सेम एरिया दैट इज 0.1406. मैंने आपको एक हैंड रिटन नोट्स शेयर किए थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, इफ यू रिमेंबर, कई दिन पहले ग्रुप में. ठीक है, तो यू जस्ट गो थ्रू देम. ठीक है, इस तरह के सारे केसेस उसमें डिस्कस हैं, बट स्टिल यू गो थ्रू देम. हाँ जी, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Yes, Ghazal, Okay, are you sir. there? Okay, Gautam, take it and send it in the group. This is the first case. Fine. सर आप बुला रहे हो मेरे को? हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रहा था बेटा, कैसे ग्रुप में भेज दो. ओके सर. ठीक है, हो गया. Shall I proceed? Yes, shall I proceed? Yes, sir. चलो Yes, sir. ठीक है, now I move to the next case. ठीक है, ये दो केसेस हो गए. now I move to the next case. थर्ड केस देखो. थर्ड केस, जब मैं थर्ड केस की बात करूंगा, ठीक है, सपोज वी वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ से 0.25 लेस देन z लेस देन 0.46 या 47, whatsoever you feel like. Suppose we want to calculate this thing. ठीक है, how to do it? First of all, you draw the graph of it. First of all, you draw the graph of it. Suppose this is the normal distribution curve. ठीक है, this point is z equal to 0, right? This point is z equal to 0. Suppose this point is चलो एक बार इसको ब्लैक से करता हूँ. Suppose this point is z equal to 0.25. ठीक है बेटा, पता लग रहा है? Yes, students, पता लग रहा है? Yes, बेटे. Yes, sir. And suppose this point is z equal to 0.47. This point is z equal to 0.47. Now, in which area are we interested, or in which probability are we interested? देखो, this is the area that we are interested in. ठीक है, this is the area that we are interested in, right? Yes. ठीक है, जो ये ब्लैक में Yes, मैंने sir. शेड किया है. ठीक है, अब इस एरिया को आप कैसे निकालोगे? How will you find out this area? Just a minute बेटे, सोचो 1 मिनट के लिए. 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम्हें सोचने के लिए. तो प्रोबेबिलिटी 0 ग्रेड 0 मतलब 0 से 0.47 की जितनी होगी उसमें से हम 0.25 की अगर माइनस कर दें. हेलो, हाँ जी. यस स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर. ओके, Yes, sir. हाँ जी, बोलो बेटे, कैसे करोगे ये? सर 0.47 की जितनी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे टेबल से उसमें हाँ. से 0.25 की माइनस कर दें अगर. एग्जैक्टली. ठीक है, देखो बेटा, मैंने आपको कहा था कि टेबल वैल्यू जो है वो 0 से लेकर उस पॉइंट तक एरिया देती है. तो अगर आपको ये ब्लैक शेडेड एरिया निकालना है तो इसे कैसे निकालोगे? ये रेड विड्थ वाला एरिया, मतलब 0 से लेकर 0.47 माइनस ये ग्रीन
width wala area, that is 0 to 0.25. Is it okay? Yes, is it okay? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो how to write it? How to write it? This is equal to probability of 0 less than z less than 0.47. ठीक है बेटे, less than 0.47, right? Minus probability of 0 less than z less than 0.25, less than 0.25. पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा, पॉइंट क्लियर है? यस, ठीक है। तो आपके पास, हम टेबल में जाते हैं, 0.47 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यस, 0.47 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, 0.4 फर्स्ट डेसिमल है तो ये कॉलम में आएगा, और 0.07 ये सेकंड डेसिमल है तो ये टॉप की रो में आएगा। इज इट ओके? तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 0.1808। यस, इज दिस वैल्यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस बेटा, इज दिस वैल्यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. we are going to write it as 0.1808. We are going to write it as 0.1808. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे, 0.25। 0.25 के लिए फिर से टेबल में देखो आप, लेट्स चेंज द कलर ऑफ इट। ठीक है, 0.2 इज द फर्स्ट डेसिमल तो ये कॉलम में आ गया, 0.5 जो है वो सेकंड, 0.05 जो है वो सेकंड डेसिमल है तो वो रो में आ गया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग व्हाट वैल्यू आर वी गेटिंग? 0.0987। ठीक हो गया, 0.0987, 0.0987। ठीक है, सो व्हाट्स एवर वैल्यू वी आर गेटिंग, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी बेटा, इज द पॉइंट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, Yes. Yes, sir. ठीक है, शैल आई प्रोसीड? शैल आई Yes, sir. प्रोसीड? ठीक है, अब आप चाहो तो इसका एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, shall I proceed? Yes. Yes, sir. Okay. अगर सपोज आपका फोर्थ केस यही बनाता हूं मैं, सपोज करो आपका फोर्थ केस है, सपोज करो कि फोर्थ केस है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.47 लेस देन z लेस देन -0.25। सपोज ये केस है। अब इसको आप क्या करोगे? यस, इसको आप क्या करोगे बेटे? टेल मी। सर मिरर इमेज देखेंगे इसकी पहले। मिरर इमेज देखेंगे, एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइड में चला गया तो इसकी मिरर इमेज आप बनाओगे। दिस विल बी इक्वल टू द सेम थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.25, ठीक है, लेस देन z लेस देन 0.47। ठीक है, और आप रीजन वही लिखेंगे, बिकॉज द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, और द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू म्यू लाइन और z इक्वल टू 0 लाइन। ठीक है, इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट्स? Yes, sir. चलो ठीक है, वो रीजन आपने जरूर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, शैल आई प्रोसीड? अब आप स्क्रीनशॉट लेके इसका डाल दो ग्रुप में। जब आपको गया आई प्रोसीड, शैल आई? Yes, sir. ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे, फिफ्थ केस। ये ना टेबल समझने बहुत जरूरी है, अगर आप टेबल नहीं समझोगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन से 0.53। सपोज यू वांट टू कैलकुलेट इट, जस्ट वेट। हाँ जी, सोचो इसके लिए क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या करोगे इसके लिए? यस बेटा, क्या करोगे? यस स्टूडेंट्स?
टेल मी। सर ऐसा कर सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो उसमें से 0.53 की प्रोबेबिलिटी माइनस करते हैं। एग्जैक्टली नहीं, आपको टेबल बनाना पड़ेगा सबसे पहले, टेबल नहीं सॉरी ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। ओके। कुछ कुछ आप ठीक कह रहे हो किसी चीज को, लेकिन पूरी तरह नहीं। देखो, आपको एक चीज तो मैंने ये सिखाई है कि हर चीज को जीरो से रिलेट करना है, z इक्वल टू जीरो से। ये z इक्वल टू जीरो है। सपोज यहां पर आपका पॉइंट है z इक्वल टू 0.53। ठीक है, और लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, मतलब इसी तरह से ये ग्राफ इधर भी एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक ग्राफ होता है, जो लास्ट में होता है दैट इज z इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। ये इन्फिनिटी तक जाता जाएगा क्योंकि z एक्स एक्सिस इज एन असिम्पटोट टू द कर्व। ठीक है, अब हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें ये लाइट ब्लू शेडेड एरिया निकालना है। वी वांट टू कैलकुलेट दिस लाइट ब्लू शेडेड एरिया। ठीक है, ये लाइट ब्लू शेडेड एरिया क्या आएगा, अगर आप देखो ध्यान से, आपको हर चीज जीरो से रिलेट करनी है। दिस विल बी इक्वल टू, ये ऑलमोस्ट वही केस है, सिर्फ यहाँ पे इन्फिनिटी वाला काम आ गया। ये यही केस है जो ये 0.25 और लेस देन 0.47 किया था। जैसे ये दो चीजों को सबट्रैक्ट किया था ना हमने, अपर लिमिट, मतलब ये देखो ना, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट वाला किया था, वही काम इस ग्राफ में करना है। अपर पॉइंट यहाँ पे इन्फिनिटी है, लोअर पॉइंट इसमें 0.53 है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन इन्फिनिटी माइनस probability of 0 less than z less than 0.53 सॉरी। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस बच्चे, बात समझ में आ गई? बेसिकली हमने क्या किया, दिस एरिया माइनस दिस एरिया। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अब आप देखो ये एरिया क्या आएगा बेटे, 0 लेस देन z लेस देन इन्फिनिटी, ये पूरा राइट पोर्शन हो गया ग्राफ का, और पूरा राइट पोर्शन जो ग्राफ का होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, उसका एरिया कितना होता है 0.5। फाइन, यस फाइन बेटा, यस सर। ठीक है। और ये 0.53 वाला हम लोग अपने टेबल में से देख लेते हैं। लेट अस चेक इट फ्रॉम आवर टेबल। देखो टेबल से कैसे देखना है, 0.5 पहला डेसिमल है ये कॉलम में, 0.03 दूसरा डेसिमल है ये रो में, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 0.2019 ये यहाँ। ठीक है बेटे, यस ठीक है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 0.20 आई थिंक इट वाज 19, यस 19। ठीक है, so whatsoever value we are getting, ठीक है, whatsoever value we are getting, that is the required thing। ठीक है बेटा, क्लियर है? yes, is it clear to all of you? सर ये 0.5 कैसे? हाँ जी, 0.5 कैसे सर? 0.5 बता रहा हूँ। ओ सॉरी 29। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद। 0.5 ऐसे बेटा, आप देखो 0 से लेके ये 0 है, ये इन्फिनिटी है, ये पूरा राइट पोर्शन हो गया ना आपका ग्राफ का। ये जो रेड विड्थ है, जो ये पूरी राइट पोर्शन होगी ना ग्राफ की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कल जब हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1। तो राइट साइड का पूरा एक हाफ, z इक्वल टू 0 लाइन के राइट साइड पे जितना एरिया है वो सारा 0.5, और लेफ्ट साइड पे जो एरिया है वो 0.5। बात क्लियर है? यस, ओके सर। ठीक है। कल हमने ये प्रॉपर्टी की थी, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ बेटे। प्रॉपर्टी हमने जो प्रॉपर्टी की थी वो क्या थी, वो ये थी कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर हम बनाते हैं तो इसमें, इस कर्व में, ये दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन z इक्वल टू 0 और x इक्वल टू म्यू। ठीक है, और x इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो जो इसका राइट साइड पूरा है दैट इज 0.5, और इसका जो लेफ्ट साइड है वो भी पूरा 0.5। फाइन, क्लियर है? यस, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, देन विल मूव अहेड।
Shall I proceed? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's move ahead to the next case. The sixth one. Sixth case. The sixth case is a probability of. Just wait. The sixth case is probability of z less than minus 2.27. Minus 2.27. ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें? First of all, we'll make the graph. ठीक है, ये ग्राफ हो गया. Z equal to 0 point हो गया. Now minus 2.27 will lie on the left hand side of this graph. Say somewhere it is here. Z equal to minus 2.27. ठीक है. And what we are interested in finding out is this blue shaded area. This blue shaded area. Clear hai? Yes. Means up to minus infinity. It is basically minus infinity to minus 2.27. Z less than minus 2.27. Yes. Is the graph cleared, all of you? हाँ जी बेटे. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब क्या करेंगे इसके लिए? What shall we do? Sir, mirror image. Mirror image. Exactly. ठीक है. तो सबसे पहले we are going to use the mirror image in it. ठीक है. When we use mirror image, ठीक है, तो यहाँ पे if the point is z equal to 2.27, तो ये बन गया. ठीक है, ये बन गया. तो हम इसे क्या लिखेंगे? Probability of z greater than 2.27. ठीक है, by using the symmetry of normal distribution curve. ठीक है, ये वर्ड जरूर लिखना है आपने. by due to symmetry of normal distribution curve about z equal to 0 line. ठीक है. अब इसको पिछले क्वेश्चन की तरह ही, पिछले पार्ट की तरह ही आप ब्रेक कर लीजिए दो पार्ट्स में. 0 लेस देन z लेस देन इंफिनिटी. ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 2.27. ठीक है, ये हो गया. हाँ जी बेटे. यस बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. Now this is 0.5. This first part is 0.5. The first because it is the right hand side, the right half of the curve minus. ठीक है. सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? 2.27. अब हम अपने टेबल में से देख लेते हैं. ठीक है, 2.27. लेट अस सी इट फ्रॉम आवर टेबल. देखो 2.27. पहले 2.2 ढूंढो वर्टिकल कॉलम में, मतलब फर्स्ट डेसिमल तक वर्टिकल कॉलम में. 2.2 ये रहा. दिख रहा है आप लोगों को? यस, Yes, दिख रहा है sir. बेटा आप लोगों को? ठीक है. और 0.07 द सेकंड डेसिमल आपने कहां ढूंढना है? सेकंड डेसिमल आपने रो में देखना है, ऊपर. अब इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू. दैट इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू. ठीक है, This is our requirement. 0.4884. 0.4884. कोई डाउट यहां तक? एनी वन ऑफ यू कोई चीज ना पता लगी हो? यस, यस बेटा, कोई चीज ना पता लगी हो यहां तक? Clear है sir. ठीक है, तो इट इज 0.4884. 0.4884. ठीक है. सो व्हाट डू वी गेट? 0.0116. ठीक है, देख लो एक बार इस केस को एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. मैं ये शेयर भी करूंगा आप लोगों से, बट स्टिल यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. हाँ जी, क्लियर है? ये सारी क्लैरिटी है इसमें? ये स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, अब sir. एक बारी मैं सारे के सारे एरिया के केसेस दोबारा दिखा रहा हूँ. एक बारी देखते जाओ. कोई डाउट है तो पूछ लो. एक एक ये मैं तकरीबन
15 to 20 सेकंड्स ये रख रहा हूँ स्क्रीन पे और आप देखते जाओ। अगर कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, यस, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. देखो इसे, यस क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, Yes, sir. अब आते हैं लास्ट केस पे इसके। सेवेंथ वन, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 2.37 less than z less than 1.45 1.45। ठीक है, 5 को भी छोड़ो, लेट इट बी ओनली 1.4। yes, we want to calculate probability of this. First of all, you plot your graph, you draw the graph. ठीक है, this point is say वो sorry ग्राफ मेरे से थोड़ा सा ठीक नहीं बना। this point is say z equal to 0। ठीक है, this point is z equal to minus 2.37। ठीक है, and say here is some point z equal to 1.4। now what are you interested in? You are interested in finding out this area, मतलब area between 0 minus 0.2 minus 2.37 and 1.4। ठीक है, you are interested in this whole shaded area। ठीक है, क्या करोगे बेटा इसके लिए? यस, हाउ टू कैलकुलेट इट? यस बच्चे, सर पहले 0 से 1.4 तक एरिया निकाल लेंगे टेबल से, तो फिर माइनस 2.37 की मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे, फिर उसका एरिया निकाल लेंगे, दोनों को एडिशन कर देंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप इसको, आपको इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना होगा। वो दो पार्ट्स क्या हैं? वो देखो दो पार्ट्स क्या हैं। एक तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसे दो पार्ट्स में अलग अलग से ब्रेक करना पड़ेगा। 37 लेस देन z लेस देन 0। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 1.4। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है? आपने इसे ब्रेक करना है। सॉरी, अब आपने सिमेट्री का यूज करना है। सिमेट्री का जब यूज करोगे तो आपके पास ये माइनस 2.37 वाला बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 2.37। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 1.4। yes, is the point clear to all of you? yes students, is the point clear to all of you? yes बेटा, Yes, sir. ठीक है। अब आप इसका एरिया टेबल से निकाल लीजिए। ठीक है,
नाउ यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ इट फ्रॉम द टेबल। देखो टेबल में जाते हैं, एक पॉइंट तो हमारा है, सॉरी एक पॉइंट तो हमारा है 2.37 और एक है 1.4। पहले 2.37 पे, आप ये रहा आपका पहला डेसिमल 2.3 कॉलम में, और 0.07 रहा ये रो में। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग एरिया इज कमिंग आउट टू बी 0.4911। क्लियर है? ये स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो पहला एरिया हमारा आ गया 0.4911, 0.4911। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट वन। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड वन, 1.4। 1.4 को आपने कैसे ढूंढना है? 1.4 आपका पहला डेसिमल है यहाँ पर कॉलम में। ठीक है, अब इसका दूसरा डेसिमल है नहीं, 0 है बेसिकली, तो 0 आपका ये रहा 0.00। इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग 1.4 की वैल्यू आई 0.4192। ठीक है, 0.4192। ये प्लस होगा। प्लस, सॉरी। ठीक है, तो ऐड कर दो इसे। ठीक है, 30, ठीक हो गया। एंड देन व्हाट वी गेट अगेन 0, नहीं, देन 1, देन 9, 0.9103। ठीक है, पॉइंट क्लियर है सारे बच्चों को? यस बेटा, पॉइंट क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट किसी को? ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट केस ऑफ एरिया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी शैल मूव टू द क्वेश्चंस। यस, शैल आई? यस सर। यस सर। चलो, ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स ऑल द केसेस ऑफ एरिया। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चंस। सी, द क्वेश्चन इज, देखो ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अ सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल्स tested to find the length of life produced the following results: mean as 12 hours and sigma or standard deviation as 3 hours. Assuming the data to be normally distributed, what percentage of battery cells are expected to have life more than 15 hours, less than 6 hours, between 10 and 14 hours? क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है? एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को, फिर मैं आगे समझाता हूँ आप लोगों को। Then I'll explain it to you. जब भी आप कहेंगे I'll move ahead. चलो आगे। यस, चलो आगे बेटा। यस सर। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक 100 सेल्स का, 100 बैटरी सेल्स का हमने सैंपल लिया और उसकी लाइफ हमने टेस्ट की, लेंथ ऑफ लाइफ देखी। उस लेंथ ऑफ लाइफ को टेस्ट करते हुए हमें ये पता लगा कि जो मीन आया 100 बैटरी सेल्स की लाइफ का जो मीन आया वो 12 आवर्स आया, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आई वो 3 आवर्स आई। ठीक है, अब हमें ये बोला गया कि इस डाटा के को यूज करते हुए, assuming the data to be normally distributed, हमें ये निकालना है कि कितनी परसेंटेज ऑफ बैटरी सेल्स की लाइफ मोर देन 15 आवर्स है, कितने परसेंटेज ऑफ सेल्स की लाइफ लेस देन 6 आवर्स है, और कितने परसेंटेज ऑफ सेल्स की लाइफ 10 to 14 आवर्स है। सबसे पहली चीज आप देखो, लेंथ ऑफ लाइफ की बात की गई। सबसे पहली चीज आप देखो, लेंथ ऑफ लाइफ की बात की गई, तो लेंथ ऑफ लाइफ जो है दैट इज अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी भी चीज की लाइफ की लेंथ जो है दैट इज अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर है बात? यस, यस, यस स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, लेंथ ऑफ लाइफ जो है, लाइफ की अगर हम बात करें तो वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं है कि
अगर जो सेल है वो 7 घंटे में खराब नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, तो वो 8 घंटे में ही खत्म होगा, वो बीच में कभी भी हो सकता है ना, उसकी लाइफ कुछ भी हो सकता है, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब उसमें उस केस में मीन जो है दैट इज 12 आवर्स और जो सिग्मा है दैट इज 3 आवर्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट मोर परसेंटेज ऑफ बैटरी सेल्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ मोर देन 15 आवर्स, मोर देन 15 आवर्स। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूं इसे, ठीक है, अलग से। देखो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एक्स डिनोट्स द लेंथ ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, पहले तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, परसेंटेज तो बाद की बात है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ ग्रेटर देन 15 आवर्स, एक्स greater than 15 hours. Is it okay? Life greater than 15 hours. If x is representing length of life of battery cell. ठीक है, अब इसको how to calculate it? हमें x bar क्या given है? x bar is given to us as 12 and sigma is given to us as 3 in the question. ठीक है, x bar is given to us as 12 and sigma is given to us as 3 in the question. ठीक हो गया? तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको आपने z में कन्वर्ट करना है। What is z? z is x minus mu by sigma. आपने हर चीज को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है ताकि आप उनके टेबल्स यूज कर सको, ठीक है, बजाय इंटीग्रेट करके चीजें निकालने के। अब यहां पर x कितना है, here x is 15, जिसके आप ग्रेटर या लेसर चाह रहे हो वो बाद में देखेंगे। एक्चुअली आप क्या चाह रहे हो, x ग्रेटर देन 15 चाह रहे हो, तो टेक x as 15। म्यू कितना है और x बार कितना है, 12। x बार और म्यू व्हाट्स एवर यू फील लाइक, ठीक है। ये बाद में सैम्पलिंग में तो मैं बाद में एक चीज और समझाऊंगा इसमें, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इट इज 12 एंड व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज 3, ठीक है। यू कैलकुलेट इट, यस यू कैलकुलेट इट एंड टेल मी व्हाट आर यू गेटिंग, you calculate it and tell me what are you getting. 1 okay, so we are getting it as 1, ठीक है, we are getting it as 1। क्लियर हो गया? यस क्लियर हो गया? हाँ जी बेटा, यस सर, फाइन, ठीक है। देन अब x greater than 15 की probability का मतलब है what are you are interested in? You are interested in finding out probability of z greater than 1, क्योंकि corresponding to x equal to 15 we are getting z as 1, ठीक है। Yes, is the point clear to you? Yes students? Yes sir. यस सर, तो you draw your graph, ये वही वाला केस बन गया, probability of z greater than 1 if this point is z equal to 0, if this point is z equal to 0, then what you are interested in, you are interested in finding out probability of z greater than 1, this thing you are interested in, ठीक है। तो ये z equal to 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, वही काम, पूरी लाइन लिखोगे आप, probability of 0 less than z less than infinity minus probability of 0 less than z less than 1, that is 0.5 minus 1 की probability हम टेबल से देख लेते हैं। इसी वजह से मैंने सबसे पहले आपको टेबल्स करवाए हैं, ठीक है। z ग्रेटर देन 1, z ग्रेटर देन 1 का मतलब 1.00, तो 1.0 कहाँ है आपका, लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट, 1.0 इज सी इन द वर्टिकल कॉलम, 1.0 इज दिस वन, ठीक है। तो 1.00 क्या हुई, ये वाली वैल्यू होगी 0.3413। इज इट ओके? यस स्टूडेंट्स, इज इट ओके बेटा? Yes sir. Yes sir. ठीक है, सो वी आर गेटिंग द वैल्यू एज 0.3413 माइनस 0.3413, ठीक है। कितना आ गया ये? यस, सॉल्विंग इट व्हाट आर वी गेटिंग, 15.87, 15.87। अब जब आप परसेंटेज निकालोगे, प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, वी मल्टीप्लाई इट बाय 100। हाउ टू कन्वर्ट प्रोबेबिलिटी इनटू परसेंटेज, वी मल्टीप्लाई इट बाय 100। इज इट ओके? यस, इज इट ओके? Yes sir. ठीक है, तो मल्टीप्लाई इट बाय 100, multiplying it by 100, what we get? We get it as 15.87%. We get it as 15.87%, ठीक है। क्लियर हो गया? यस, क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस Yes sir. ठीक है। Yes sir. अब इसी को मैंने यहाँ पे पीडीएफ में सॉल्व किया है इस तरह से। देखो पहले हमने z को x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा किया, दैट इज x माइनस 12/3।
अब हमने जब x को 15 लिया तो z क्या आ गया 15 माइनस 12/3 दैट इज 1। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 15 कैलकुलेट की एंड वी आर गेटिंग द सेम थिंग 0.51587 जो भी समझा के चुका हूं। और फिर उसके बाद यू मल्टीप्लाइड बाय 100 वी गेट इट एज 15.87%। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 आवर्स। लेस देन 6 आवर्स मींस वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6। तो उसके लिए पहले z निकालो फॉर x इक्वल टू 6। z क्या आ जाएगा 6 माइनस 12/3 6 माइनस x बार बाय सिग्मा दैट इज -2। ठीक है, यस, इज इट ओके? यस स्टूडेंट्स, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2। ठीक है, अब इसको सिमेट्री लगा के इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2। देन सॉल्व इट इन द सिमिलर वे जैसे हम टेबल सॉल्व कर रहे थे। वी गेट इट एज 0.0228। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 वी गेट द परसेंटेज। सो 2.28% बैटरी सेल्स हैव लाइफ लेस देन 6 आवर्स, आर एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ लेस देन 6 आवर्स। ठीक है, कोई डाउट इसमें? यस, बेटा समझ आ रहा है कि नहीं? यस स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. क्लियर है? अच्छा, अब आओ लास्ट पार्ट पे, बिटवीन 10 एंड 14 आवर्स। 10 एंड 14 आवर्स का मतलब हमें वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 लेस देन x लेस देन 14। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके लिए पहले x इक्वल टू 10 के लिए और फिर x इक्वल टू 14 के लिए z की वैल्यू निकालो बाय द सेम कन्वर्टर, x माइनस म्यू बाय सिग्मा और x माइनस x बार बाय सिग्मा। तो पहले में when x is 10 we are getting z as minus 0.67, when x is 14 we are getting z as 0.67। ठीक है, तो probability of 10 less than x less than 14 means probability of z less than probability of minus 0.67 less than z less than 0.67। you break it into two parts। ठीक है, जैसे हमने किया ग्रीन शेडेड एरिया, ये ग्राफ देख रहे हो, ग्रीन शेडेड एरिया प्लस ब्लू शेडेड एरिया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ minus 0.67 less than z less than 0 plus probability of 0 less than z less than 0.67। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, probability of 0 less than z less than 0.67 plus probability of 0 less than z less than 0.67। तो इसको हम कॉमन पार्ट में क्या लिख सकते हैं, 2 times probability of 0 less than z less than 0.67। ठीक है बेटे, यस, इज इट ओके? ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी 0.4974। ठीक है, 0.4974। यू मल्टीप्लाइड बाय 100 वी गेट इट एज 49.74%। 49.74% का मतलब बेटे क्या हो गया कि 49.74% cells are expected to have life between 49.74% cells are expected to have life between 10 to 14 hours। I hope the question is clear all of you। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं प्लीज लेट मी नो। इसमें पूरा क्वेश्चन आपको देखो दिखाई दे रहा है, पूरा सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो। देख लीजिए एक बार पूरा क्वेश्चन इसमें से। हाँ जी, क्लियर है, क्लैरिटी है? यस, Yes, sir. कोई डाउट इसमें? कोई भी चीज आप रिपीट करना चाहते हो एरियाज में या इस क्वेश्चन में, एनी वन ऑफ यू? Clear, sir. क्लियर है? ठीक है, ये पीडीएफ मैंने आपसे शेयर की हुई है। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटे, और एरियाज तो आपने बहुत ही अच्छे से देखने हैं, क्योंकि अगर आपको एरियाज नहीं आएंगे तो यू कांट डू एनीथिंग।